कुछ ज्यादा ही कम स्टूडेंट कनेक्ट नहीं किया। खैर, बाय द वे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्शन हीट ट्रांसफर। सो प्लीज राइट डाउन कंडक्शन हीट ट्रांसफर, conduction heat transfer through cylindrical wall, through cylindrical wall. Through cylindrical wall. Conduction heat transfer through, that is now till we have discussed simple example in this way, while today we will discuss about the heat transfer. For example, this is a section of cylinder, then this is a cylindrical wall. Cylindrical walls also have a certain thickness. This is a cylindrical wall. So heat may transfer from of the cylinder to outside or outside. It will depend on the temperature, whether temperature is higher inside of the cylinder or higher outside of the cylinder. If we will assume that temperature at the inner surface of the cylinder is Ti, temperature at the outer surface of the cylinder is T out, and this inner radius of the cylinder is Ri, outer radius of the cylinder is Ro, that is R outer. Similarly, if we talk about the thickness of the wall, then thickness of the wall will comes out to be, thickness of the wall will come out of will comes out to be R out minus R in. If we want to calculate the thickness of the wall, then thickness of the wall are this, that is thickness T is given as R out minus R in. So according to Fourier's law of heat conduction, heat transfer via cylinder is given as, write down heat transfer via cylinder as given as, directly we will discuss about the formula. We are not going to derive the formula. So heat transfer through cylindrical wall is given as Q equal to, please write down, 2 pi L into K into T in minus T out upon ln R out upon R in. This is the formula of heat transfer, conduction heat transfer through a cylindrical wall. We may write this in this way, T minus T out 1 upon 2 pi Lk into ln R out upon R in. Here L and K क्या है? L is the length of the cylinder. Obvious बात है, सिलेंडर की एक लेंथ होगी आगे की तरफ. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज रेक्टेंगुलर कोई सिलिंड्रिकल बॉडी है तो इसकी आगे की तरफ एक लेंथ होगी. तो ऑब्वियसली L is the length of cylinder, length of cylinder, and K is the coefficient of thermal conductivity. Coefficient of thermal conductivity of wall material, cylinder wall material. Thermal conductivity of cylinder wall material. So heat transfer is given by this formula. If you
pupil recall discussed in last, this formula is somewhat similar to formula like this that has been already discussed in last class, delta T upon RTH, where if we compare this, delta T is equal to T in minus T out, and RTH is equal to 1 upon 2 pi Lk into Ln R out upon R in. And you know this RTH is the thermal resistance. This RTH is the thermal resistance. इसका मतलब क्या हुआ कि obviously heat transfer via cylinder can also be represented as an electrical analogy, as we have already discussed for simple wall. In case of simple wall, we have derived this electrical analogy in this way: RTH, T1, T2, या T in, T out. Similarly, we may draw electrical analogy as T in, T out, RTH, where you may easily calculate the thermal resistance. Thermal resistance for cylindrical wall. In case of plain wall, thermal resistance was given as, you people have already calculated that RTH equal to this thickness, जो भी ये thickness, for example अगर L है तो L by K into A. While in that particular case, thermal resistance is given by this formula. To calculate the thermal resistance, you would require 1 upon 2 pi Lk Ln R out radius upon R input radius. So you people will easily calculate the heat transfer cylinder. Heat cylinder. I think this is clear. By the way, this is heat transfer through whole surface of the cylinder. If you want to calculate the heat transfer through per unit length of the cylinder, heat transfer through per unit length of the cylinder, then this formula for per unit length अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो Q को इस तरीके डिवाइड कर दें. फॉर पर यूनिट, मैं यहीं पर लिख देता हूं, फॉर पर यूनिट लेंथ बेसिस, पर यूनिट लेंथ बेसिस, यूनिट लेंथ के लिए हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन Q L से डिवाइड कर दें, यानी पर यूनिट लेंथ बेसिस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 pi K T out minus upon L R R in. Similarly, this can be written as T out, sorry, T in minus 1 upon 2 pi into R out R in. The formula of heat transfer for per unit पूछ लिया था, per unit calculate, and you people will where को कंपोजिट वॉल. उसके बाद हमने पढ़ा हीट ट्रांसफर थ्रू अ कंपोजिट वॉल. तो सिमिलरली हम यहां भी पढ़ेंगे वैसे ही. अभी तो था हीट ट्रांसफर थ्रू अ सिंगल ही सिलेंडर है, एंड नाउ वी विल स्टडी द हीट ट्रांसफर अबाउट
अ कंपोजिट सिलिंड्रिकल शेल। सिलेंडर की जो वॉल्स है वो कंपोजिट यानी कई मटेरियल से मिलकर बनी है, लेयर बाई लेयर। तो हेडिंग अब मैं अगली यहां पर चेंज कर रहा हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं। स्नैपशॉट ले लीजिए अगर आप लिंक देख पाए हैं तो, बाय द वे लिख चुके होंगे। ओके, मैं इसे मिटाता हूं। चलिए अगला है इसी का पार्ट, हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट सिलेंडर। थ्रू कंपोजिट सिलेंडर, हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट सिलेंडर। कंपोजिट सिलेंडर, हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट सिलेंडर। जैसे हमने लास्ट टाइम पर पढ़ा था कि कंपोजिट वॉल थी, जो वॉल बनी हुई थी वो कई मटेरियल से ऐसे बनकर के बनी थी, मटेरियल 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप। सिमिलरली सिलिंड्रिकल वॉल्स भी कई सारे मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लीज ड्रॉ दी डायग्राम। इस फिगर को बनाइए। एक सरफेस ये है, एक वॉल किसी मटेरियल की है, कोई होगा मटेरियल 1 टाइप, एक कंपोजिट, फिर इसके ऊपर से एक लेयर, ये मटेरियल कोई होगा 2 टाइप। 3 ले लेते हैं, चलिए ज्यादा नहीं लेते हैं, एक बेस है, ये भी है 3 टाइप। ये 3 मटेरियल से सिलिंड्रिकल वॉल बनी हुई है, हमारी सिलेंडर बना हुआ है। यानी इस सिलेंडर को 3 मटेरियल से, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनाया है, जिनके कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है, इसका K1, इसका K2 और इसका K3, इनके सभी के थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट अलग अलग है। इसको डॉट कर देते हैं, इसको इस तरीके से हैशिंग कर देते हैं। ये 3 मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट से मिलकर के हमारी सरफेस बनी हुई है। अब इनकी सभी की देखिए रेडियस कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत आसान है। रेडियस फॉर एग्जांपल हम अंदर वाली रेडियस को तो आर, चलिए ऐसे कह देते हैं आर, चाहे आप 1 2 3 4 ऐसे कहना शुरू कर दीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं कह रहा हूं अंदर वाली रेडियस को R1, फिर उसके बाद में रेडियस R2, उसके और बाहर रेडियस जो आएगी उसे R3, उसके सबसे बाहर वाली रेडियस को मैं कह रहा हूं R4। अब मैं यहां इस तरीके से कह रहा हूं, टेम्परेचर सिमिलरली एट सरफेस 1 T1, T2, T3 एंड T4। टेम्परेचर हम सिमिलरली कह रहे हैं T1, T2, T3 एंड T4। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर अक्रॉस दिस वॉल। यहां से लेकर के यहां तक जो हीट ट्रांसफर अक्रॉस दिस वॉल हो रही है, ये हमें कैलकुलेट करना है। By the way, we will try to calculate the heat transfer across this cylindrical wall, this cylindrical shell per unit length basis. हम लेंथ बेसिस जो सेकंड फॉर्मूला बाद में हमने लिखा था उस पर बेसिस हम कैलकुलेशन इसकी करने वाले हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू ड्राइव इलेक्ट्रिकल एनालॉजी फॉर दिस कंपोजिट सिलिंड्रिकल शेल। और इलेक्ट्रिकल एनालॉजी कैसे ड्राइव करेंगे, यहां से देखिए डॉटेड लाइन खींच करके बना दीजिए इसको इस तरीके से। ये डॉटेड लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए आपको थोड़ी कम दिखाई दे रही होंगी। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी क्या होगी, बोले थर्मल रेजिस्टेंस भी लगे हुए, एक थर्मल रेजिस्टेंस, दूसरा थर्मल रेजिस्टेंस, तीसरा थर्मल रेजिस्टेंस। देयर आर 3 थर्मल रेजिस्टेंसेस, दैट इज RT1, RT2 एंड RT3। टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, 1 टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर, 3 और यहां पर लास्ट में आउटपुट 4। अब देखिए these all 3 resistances are in series. These all 3 resistances are in series. Hence total thermal resistance, total thermal resistance, total thermal resistance, total thermal resistance is given as RT कैपिटल हम इस तरीके से कह देते हैं इक्वल टू
RT1 plus RT2 plus RT3. Now according to Fourier's law of heat conduction, heat thermal resistance for 1, 2 and 3 can be given as, थर्मल रेजिस्टेंसेस को अलग अलग हम कैलकुलेट कर लें। RT1 कैसे दिया गया था? RT1 का फॉर्मूला था 1/2πK1, बिकॉज यहां पर पहले पोर्शन का थर्मल कॉफिशिएंट क्या है? K1, 2πK1 इंटू ln R। देखिए ध्यान दीजिए R आउट अपॉन R इन था। फॉर्मूला क्या था? यहां लिख देता हूं, चलिए एक बार पुराना वाला। RTH का फॉर्मूला था 1/2πK ln R आउट अपॉन R इन, यानी आउटर रेडियस अपॉन इनर रेडियस। जिस वॉल के लिए बात करेंगे उसके लिए इन आउटर रेडियस अपॉन इनर रेडियस, यानी अगर इस वॉल की बात करें इसके लिए आउटर रेडियस R2 है, इनर रेडियस R1 है, दैट इज R2 अपॉन R1। सिमिलरली रेजिस्टेंस 2, दैट इज फॉर दिस वॉल, जो सेकंड पोर्शन वॉल का स्टार्ट हुआ है, जो सेकंड पोर्शन स्टार्ट हुआ RT2 इक्वल टू 1/2πK2 इंटू ln R। इसके लिए कहा R आउट क्या है? इसके लिए दूसरी वाली के लिए 3, R3 अपॉन R2, क्यों यहां से लेकर यहां तक चल रहे हैं, 3 अपॉन R। Similarly, thermal resistance for third wall RT3 equal to 1/2πK3 ln R। अब देखिए यहां पे क्या, R4 अपॉन R3, R4 अपॉन R3। This is the thermal resistances for wall 1, surface 1, surface 2 and surface 3. So we know that heat transfer is given as Q equal to temperature differences delta T upon total thermal resistance RT. Total thermal resistance RT. So थर्मल हीट ट्रांसफर कैन बी गिवन एज, लिख लीजिए अब यहां पर, इसका मतलब अब आप R टोटल निकाल सकते हैं। R चलिए पहले मैं टोटल निकाल देता हूं। R टोटल इक्वल टू 1/2πK1 ln R2 अपॉन R1 प्लस 1/2πK2 ln R3 अपॉन R2 प्लस 1/2πK3 ln R4 अपॉन R3। क्लियर यहां तक? देख लीजिए आराम से, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं समझने के लिए, देख लीजिए, देखिए थोड़ा सा आराम से। ठीक है, तो सिमिलरली अब इस टोटल को यहां ले जाकर इस फॉर्मूले में रख दें, देन हीट ट्रांसफर कैन बी गिवन एज Q इक्वल टू डेल्टा T। क्या होगा? T इनर टेम्परेचर माइनस T आउटर। बाय द वे T इनर और आउटर हमें नहीं मालूम, हम देखते हैं हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो हमने मान के चला है कि हीट जो है इनसाइड टू आउटसाइड ट्रांसफर हो रही है, यानी इनर टेम्परेचर इज मोर एज कंपेयर टेम्परेचर। So heat transfer is given as T inner यानी T1 minus T4। इनर टेम्परेचर T1 कहा था, बाहर का वाला टेम्परेचर हमने T4 कहा था, 4 अपॉन
this whole 1/2 pi K1 ln R2/R1 plus 1/2 pi K2 ln R3/R2 plus 1/2 pi K3 ln R4/R3. This is the formula of heat transfer through composite cylindrical wall. This is the formula of heat transfer through composite cylindrical wall. Please write down this formula and try to understand. If you have any doubt, you may ask. If you doubt till now, you are free to ask any questions. Please try to ask the questions that are related with today's lecture. Always इस बात की कोशिश किया करें जो उसी दिन के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन उसी दिन पूछ लिया करें, इकट्ठा ना किया करें क्वेश्चंस को। और आगे के भी क्वेश्चन थे उन्हें सेपरेटली आप पूछ सकते हैं इन व्हाट्सएप मैसेज। उनके लिए जो आपके डाउट्स हैं उनके लिए हम सेपरेट एक लेक्चर ले लिया करेंगे अलग से। So I think this is clear to you pupil. ओके, देखिए इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बाय द वे न्यूमेरिकल चाहे हम प्लेन वॉल के लिए करें, हीट कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल या कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू सिलिंड्रिकल वॉल्स करें, दोनों के लिए क्वेश्चंस बहुत सिमिलर हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देयर इज इन दीज टू क्वेश्चंस, बट वी विल ट्राई टू क्वेश्चन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, क्योंकि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का जब कंसेप्ट इसमें और इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन बट थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन कि हमें हम सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अब तो आ रही होगी वॉइस, आई थिंक अब वॉइस आ रही है। जो आप आपकी मिल रही है, मेरी आपकी तरफ जा रही है। दिस इज ड्यू टू समटाइम्स ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या करें, नेटवर्क की बड़ी इश्यू है। खैर मजबूरियां हैं हमारी भी और आपकी भी, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अदरवाइज दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड यू पीपल आई थिंक विल वेरी एंजॉय दिस सब्जेक्ट इफ दिस इज गोइंग इन ऑफलाइन मोड। इसमें तो बहुत मजा आने वाला था सब्जेक्ट में, और आई थिंक आप लोग फील भी कर रहे होंगे एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट कि आप, आई थिंक यू आर एंजॉइंग दिस सब्जेक्ट। Your strength is showing that you are enjoying the subject. जी सर। अब ये ऑनलाइन में है, सर ये थर्ड सेम में नहीं है सर, ये थर्ड सेम में नहीं है थर्मोडायनामिक्स। नहीं थर्ड सेम में इस समय एक और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वो पढ़ने को मिलेगा तुम्हें। इससे भी इसके ही मतलब का सब्जेक्ट है, बहुत एंजॉयमेंट करने लायक सब्जेक्ट है, दैट इज हाइड्रोलिक्स। एंड आई विल also I will teach the hydraulics also. So this subject is also very good subject, and you people really enjoy if class going in offline mode for hydraulics. इससे भी ज्यादा मजा आएगा उस सब्जेक्ट में अगर ऑफलाइन। इंशाल्लाह सर ऑफलाइन ही होगा। बोथ सब्जेक्ट है इंशाल्लाह। है तो मैं डिस्कस कर रहा था कि इस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट आफ्टर स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। क्यों कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को जब हम इसमें और इन्वॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन और ब्यूटीफुल बनता है और अच्छा क्वेश्चन बनता है। यानी 2-3 क्वेश्चन करके ही हमें बहुत सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे, नहीं तो फिर हमें ये पहले कंडक्शन का अलग क्वेश्चन करेंगे 2-3, फिर कन्वेक्शन के अलग करें, फिर कन्वेक्शन और कंडक्शन को जोड़कर करें तो काफी वक्त लगेगा। बिकॉज वी आर स्टडिंग बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर, तो पहले हम कन्वेक्शन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहीं पर। तो कन्वेक्शन को स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट अभी क्लास में। बस 1 मिनट में आपको मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट।